Yesterday we have taken this particular numerical where we have started with this problem, and we have just shown this problem. We have started with this particular power system network, where you can see that this power system network is comprising of two generators and one transformer and two transmission lines. So this is our problem, and this problem we have taken yesterday. Here you can see there are three buses, bus 1, bus 2, bus 3, and we have drawn the graph in this fashion. So when we are drawing the graph in this fashion, we are representing the buses with the nodes. So you can see here this bus number 1 is replaced with node number 1, bus number 2 is replaced with node number 2, and bus number 3 is replaced with node number 3. And an additional reference node we have taken, which is denoted as 0. So in this way we have taken the problem, and we have seen the two parts, that is the element node incidence matrix and the bus incidence matrix. So today we will look into the rest of the five parts, that is the branch path incidence matrix, basic cut set matrix, augmented cut set matrix, basic loop incidence matrix, and augmented loop incidence matrix. So these 5 parameters we have to look today. So let us see one by one how we will start with the next matrix, that is the branch path incidence matrix. So next matrix, that is the third matrix we are going to see today, is the branch path incidence matrix. So let us see branch path incidence matrix today and see how this branch path incidence matrix will be prepared with the help of this particular graph. So let me write the heading of this matrix. So the heading of this matrix is branch path incidence matrix. And how it is denoted? It is denoted by the alphabet K. So for this, what we require is, for this we will require the graph which we have drawn in the previous section. So this particular graph which we have drawn here, we have to take the same graph and we have to again start with the branch path incidence matrix. So let us redraw the graph first, and now while drawing the graph, you need to draw only the branches and not the links. So I am not going to repeat it again, branches and links, because yesterday I have already clearly stated how the branches are considered, how the links are considered, right? So if you are not available in the class, it's your responsibility to check it with other colleagues and see how the things are moving, right? So in this way we have to draw only the branches for drawing this branch path incidence matrix. So please draw this first, and then we will draw this particular matrix. Okay, so we have drawn the graph. Now what we have to do is, we have to make the path which this branches will make. So how many branches are there? Let me write here. So we have the branches as, the set of the branches that we have here is, we have already denoted the branches as the element 1, 2 and 3. So these are my branches. So now what I will do, one by one I will go to these branches, and with the help of these branches, that we will see and the things. So when we consider the branch path, we have to consider the path that the particular branch is making with respect to the reference node. ठीक है, फिर से repeat कर रहा हूँ, with respect to the reference node. For example, if I take this branch number 1, so this branch number 1 is starting from 0 and ending at 1. So what we have to do is, from this one node we have to go to the reference. हमें यहाँ पे ये 1 से रेफरेंस के तरफ आना है और उसका जो पाथ बन रहा है उसको बनाना है. सो 1 से रेफरेंस की तरफ हम आए तो ये डाउनवर्ड एरो आया, और इस पाथ को हम नाम देंगे पाथ नंबर 1. सो द पाथ विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय दिस पर्टिकुलर ब्रांच 1 विल बी गिवन एज 1. सिमिलरली आई विल गो टू 2. सो 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो 2 स्टार्ट हो रहा है 0 से और खत्म कहाँ पे हो रहा है? 3 पे. दैट मीन्स 2 का जो पाथ है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 3 से लेके तो 0 तक होगा. ये होगा पाथ नंबर 2. सिमिलरली जब हम 3 की बात करेंगे तो 3 कहाँ से टर्मिनेट हो रहा है? जाके देखो 3 टर्मिनेट हो रहा है ये नोड नंबर 2 पे.
तो नोड नंबर 2 से लेके 0 तक हमें आना है। दिस विल बी योर पाथ नंबर 3। तो पाथ नंबर 3 के लिए कैसे पाथ होगा, देखो पाथ नंबर 3 के लिए सबसे पहले हमें ये 2 से 1 पे आना पड़ेगा, फिर 1 से 0 पे आना पड़ेगा। तो पाथ कैसे होगा, देखो 2 से 1 मतलब सपोज आई चेंज द कलर ऑफ दिस एंड बिकॉज समझ में नहीं आएगा इसीलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। सो पहले 2 से 1 पे आए और फिर 1 से 0 पे आए, तो दिस विल बी योर पाथ नंबर 3। ओके, सो एक एक करके हमने ये तीनों पाथ्स बना दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। मैट्रिक्स को क्या नाम दिया गया है, चेक करो। मैट्रिक्स का नाम है के। के इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ब्रांचेस है, लिंक है ही नहीं, तो हम यहाँ पे एक एक करके ब्रांच के नाम लिख देंगे 1 2 3। और हमारे जो पाथ्स बने, कौन कौन से पाथ्स बने, पाथ नंबर 1 बना, पाथ नंबर 2 बना और पाथ नंबर 3 बना। ये 3 पाथ हमारे बने। तो ये तीनों पाथ के हमने एक एक करके कॉलम ऐसे बना देने हैं और ये कॉलम को अब हमने एक एक करके फिल करना है। सो एक एक करके जब ये फिल करोगे तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा, दिस मैट्रिक्स विल बी नेम्ड एज ब्रांच पाथ इंसिडेंस मैट्रिक्स। इज इट क्लियर एवरीवन? कॉन्सेप्ट सबको ध्यान में आया ब्रांच पाथ इंसिडेंस मैट्रिक्स का? ब्रांच पाथ इंसिडेंस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? ब्रांचेस को एक एक करके कंसिडर करना है, ब्रांच कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है वहां से हमें रेफरेंस की तरफ आना है और एक एक करके उसको नाम दे देना है 1 2 3 अकॉर्डिंगली। ओके, सो नाउ लेट अस फिल द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब देखो, अब सबसे पहले हमें इस 1 वाला जो कॉलम है वो फिल करना है ना। 1 वाला कॉलम मतलब दिस कॉलम। सो 1 कॉलम के लिए हमें जाना पड़ेगा 1 वाले पार्ट में। सो 1 वाला पार्ट कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, राइट। और इसके रिलेटेड कौन सा ब्रांच है, इसके रिलेटेड 1 ब्रांच है। अब देखो इस ब्रांच का एरो अपवर्ड्स है और ये पाथ का जो एरो है डाउनवर्ड्स है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, अभी जब भी हमारा ये दोनों का जो एरो है वो सेम रहेगा तो हम +1 लेंगे, और अगर एरो का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा तो हम -1 लेंगे। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। जब हमारा ये जो एरो है, जैसे ये पाथ का जो एरो है डाउनवर्ड है बट ये ब्रांच का जो एरो है वो अपवर्ड है, तो जब ये दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट रहेंगे तो -1, अगर सेम रहेंगे तो +1। Is it clear everyone? Please reply on the chat box. Is the concept clear to everyone? अगर हमारे दोनों के एरो के डायरेक्शन सेम रहे तो +1, अगर एरो के डायरेक्शन सेम नहीं रहे तो -1। और जिसके लिए हम बना रहे वो उसी पॉइंट को एंट्री करना है। जैसे ये 1 के लिए हमारे पास 1 है और कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 के कॉलम में जाएंगे और इस 1 के रो में जाएंगे और यहाँ आके हम लिखेंगे -1। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पर हम लिखेंगे -1। क्यों -1 लिखेंगे हम? क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहा होता तो हम यहाँ पर +1 लिखे होते, बट क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा -1। ओके ओके, नाउ लेट अस गो टू द पाथ नंबर 2। पाथ नंबर 2 कहाँ है, चेक करो। पाथ नंबर 2 यहाँ पर है। पाथ नंबर 2 के लिए हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? पाथ नंबर 2 के लिए हमारे पास एलिमेंट है ये ब्रांच नंबर 2। तो ये ब्रांच नंबर 2 का एरो और पाथ नंबर 2 का एरो कैसा है, सेम है या अलग है? वेदर द एरो ऑफ दिस ब्रांच नंबर 2 एंड दिस पाथ नंबर 2 इज सेम और डिफरेंट? प्लीज रिप्लाई फर्स्ट, सेम है या डिफरेंट है? अगर सेम है तो +1, अगर डिफरेंट है तो -1, राइट। सो क्योंकि ये सेम है तो हम क्या करना है, हम अभी जाना है ये पाथ नंबर 2 के कॉलम में और ये रो नंबर ब्रांच नंबर 2 के रो में, और यहाँ पे हम लिखेंगे -1। क्यों -1 लिखा, सबके ध्यान में आया? -1 क्यों लिखा, सबको समझ में आया? क्योंकि पाथ नंबर 2 के लिए हम अभी एंट्री कर रहे हैं और पाथ नंबर 2 के लिए है ब्रांच नंबर 2, जो कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, राइट। अब आते हैं ब्रांच नंबर 3 में। देखो ब्रांच नंबर 3 कहाँ है, ब्रांच पाथ नंबर 3 यहाँ पर है। उसके लिए हम 2 से पहले 1 पे आए और 1 से फिर 0 पे आए।
तो 2 से 1 पे आए तो एरो का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा है ना। 2 से 1 पे अगर आए हम तो एरो का डायरेक्शन कैसा रहेगा, मैंने बनाया है डायग्राम में, चेक करो। सो एरो का डायरेक्शन और इस ब्रांच का डायरेक्शन क्या सेम है, बताओ मुझे। ये ब्रांच नंबर 3 है, ब्रांच नंबर 3 का डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट है और पाथ नंबर 3 का जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो दोनों के डायरेक्शन कैसे हुए, दोनों के डायरेक्शन सेम हुए या ऑपोजिट हुए, फटाफट रिप्लाई करो। दोनों का डायरेक्शन सेम हुए या ऑपोजिट हुए, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हुए, वेरी गुड। तो ऑपोजिट हुए तो क्या करना है, -1 लेना है। बट अब यहाँ पे एक एंट्री नहीं है, अब यहाँ पर 2 एंट्रीज है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 एंट्रीज आएंगे, एक एंट्रीज नहीं रहेगा। Why 2 entries will be there? Because here when you consider the branch, this branch is coming across 2 elements. Then कौन-कौन से एलिमेंट्स है इस ब्रांच नंबर, इस पाथ नंबर 3 के 2 एलिमेंट्स है, देखो एलिमेंट नंबर 3 और एलिमेंट नंबर 1। तो एलिमेंट नंबर 3 कैसा होगा, माइनस, और एलिमेंट नंबर 1 भी कैसा होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि ये दोनों टाइम में क्या हो रहा है, ये दोनों ही केस में जो एरो के जो डायरेक्शन है वो दोनों के ऑपोजिट है। मतलब हमारा जो ब्रांच का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है और हमारा जो ब्रांच का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट है। तो यहाँ पर हम 3 के कॉलम में आएंगे और इस 3 के रो में आएंगे और यहाँ पे -1 लिखेंगे क्योंकि ये 3 के लिए है। सिमिलरली जब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो हम 1 के अक्रॉस आ रहे हैं और 1 कैसा है, 1 ऊपर जा रहा है और पाथ नीचे आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 1 के सामने आके इसको भी -1 देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है। ध्यान से देखो, ये पाथ के लिए 2 एलिमेंट्स है, बाकी के जो 2 पाथ थे इसके लिए एक ही एलिमेंट थे, बट इस पाथ के लिए 2 एलिमेंट है। इसलिए अगर हम एक भी एलिमेंट को छोड़ देते हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो गलत बनेगा। इसलिए हमारा मैट्रिक्स गलत नहीं बनना चाहिए, इसलिए हमने सारे एलिमेंट्स की जो एंट्री है वो प्रॉपरली करनी चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन, सबको ध्यान में आया, सबको ब्रांच पाथ इंसिडेंस मैट्रिक्स समझ में आया, और बाकी के जो सारे पार्ट्स रह गए हैं उनको सबको 0 0 कर देना है क्योंकि अब वो भरने वाले नहीं है, राइट। सो ब्रांच पाथ इंसिडेंस मैट्रिक्स क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर हमें थर्ड पार्ट का आंसर मिला, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर पार्ट 3। हमें टोटल 7 मैट्रिक्स बनाने हैं, 7 में से अभी तक हमने सिर्फ 3 मैट्रिक्स बनाया है और 4 मैट्रिक्स हमें बनाना है। व्हाट इज द नेम ऑफ नेक्स्ट मैट्रिक्स, द नेम ऑफ नेक्स्ट मैट्रिक्स इज, सॉरी ब्रांच पाथ हो गया हमारा, नेक्स्ट मैट्रिक्स का जो नाम है वो है बेसिक कट सेट इंसिडेंस मैट्रिक्स। सो द नेम ऑफ नेक्स्ट मैट्रिक्स इज बेसिक कट सेट इंसिडेंस मैट्रिक्स। बेसिक कट सेट इंसिडेंस मैट्रिक्स को लिखा जाता है कैपिटल लेटर B से। ओके, so far we have covered 3 matrices, now this is the third matrix। so थर्ड मैट्रिक्स के लिए हमें डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। डायग्राम हर बार हमें फिर से बनाना होता है, सेम डायग्राम में हम कोई भी चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊंगा यहाँ पर, और डायग्राम को बनाते समय अब हमें ब्रांच और लिंक दोनों ही बनाने पड़ेंगे। सो ब्रांच और लिंक के साथ में मैं ये डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, आप लोगों ने भी अपने कॉपी में दोबारा बना लेना है, ठीक है। सो दिस इज योर एलिमेंट 1, दिस इज योर एलिमेंट 2, बेसिक कट सेट्स बनेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिक कट सेट। सो यहाँ पर कितने ब्रांचेस है आप सभी को पता है, व्हाट आर द ब्रांचेस हियर। सो द ब्रांचेस हियर आर 1, 2 and 3, बराबर। ये 3 ब्रांचेस है हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है। और हमें नाम देना है बेसिक कट सेट को। तो सपोज हम ब्रांच नंबर 1 के लिए बेसिक कट सेट लेंगे A, ब्रांच नंबर 2 के लिए हम बेसिक कट सेट लेंगे B, और ब्रांच नंबर 3 के लिए हम बेसिक कट सेट लेंगे 3। हमें इस तरीके से ब्रांचेस को नाम देना है बेसिक कट सेट के साथ में। ब्रांच नंबर 1 को मैंने नाम दिया A, ब्रांच नंबर 2 को मैंने नाम दिया B, और ब्रांच नंबर 3 को मैंने नाम दिया C। ऐसे ही हमें मैट्रिक्स बनाना है।
और मैट्रिक्स बना के जो है हमें मैट्रिक्स को मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो मैट्रिक्स का हमारा नाम इसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स का नाम कैसे होगा, देखो B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये पूरे लाइन से हम क्यों लिख पाए, ये पूरे लाइन से हम इसीलिए लिख पाए क्योंकि हमारा 1 2 3 जो है वो ब्रांच था और 4 और 5 जो है वो लिंक था। अगर ब्रांच और लिंक के सीक्वेंस में चेंजेस आएगा तो सीक्वेंस में चेंजेस हमें करने पड़ेंगे और उस हिसाब से हमें लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारा जो मैट्रिक्स है वो गलत हो जाएगा और गलत मैट्रिक्स के लिए आपको कभी भी सही मार्क्स नहीं मिल सकते। सो प्लीज टेक इनटू माइंड, है ना, अगर आपको मैट्रिक्स सही लिख रहे हो आप तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, अगर आप मैट्रिक्स सही नहीं लिख रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो एक एक करके हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक एक करके इनके सेट लिखने हैं। ठीक है, जो ए बी और सी हमने यहाँ लिखा हुआ है, इस ए बी और सी में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे इनके सेट्स हमें बनाने हैं और सेट्स बनाने के बाद ये पूरे जो रोज और कॉलम है ये हमें फिल करने हैं जैसे हमने के लिए फिल किया था, है ना, जैसे हमने के बनाया था मैट्रिक्स को फिल किया था 0 1 -1 +1 जो भी है उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी फिल करना है, तभी जाके हमारा ये मैट्रिक्स जो है ये फिल होगा, ये मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट होगा। अदरवाइज हमारा ये मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हम इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के जो एंट्रीज है ये हम नहीं कर पाएंगे। मैट्रिक्स के अगर एंट्रीज हमें करने हैं तो मैट्रिक्स के एंट्री करने के लिए आप सभी को पता है कि हमें +1 या -1 चाहिए, बराबर, क्योंकि +1 या -1 या 0, अगर कुछ भी नहीं है तो 0, बराबर, लेकिन +1 और -1 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, तो प्लस कौन रहेगा माइनस कौन रहेगा, ये सब चीजें करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेट, है ना। सेट में फिर हम चेक करेंगे कि सेट में हमें क्या करना है। बेसिक कट सेट को हमें इस तरीके से फिल करना है और फिल करने के लिए हमें सबसे पहले तो सेट बनाना है। तो अब देखो बेसिक कट सेट का जो रूल है वो क्या है। बेसिक कट सेट का रूल है आपको एक एक करके उस ब्रांच को कट करना है जिसके वजह से बेसिक कट सेट को नाम दिया है, राइट। सो लाइक इफ आई स्टार्ट विथ ब्रांच नंबर 1, सो ब्रांच नंबर 1 के लिए मैंने ए दिया है। सो ब्रांच नंबर 1 जब कट होगा तो ब्रांच नंबर 1 के साथ बाकी ब्रांचेस कट नहीं होने चाहिए। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जब भी हम कोई भी ब्रांच को कट करेंगे, क्योंकि देखो इस इंसिडेंस मैट्रिक्स का नाम क्या है, इस इंसिडेंस मैट्रिक्स का नाम है कट सेट। दैट मीन्स हमें सेट को कट करने पड़ेंगे, राइट। सेट को अगर हम कट कर रहे हैं तभी हमारा कट सेट का नाम आएगा। और सेट को कट करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, हम जिस ब्रांच के लिए उस सेट का नाम लिए है वो ब्रांच अकेला रहना चाहिए, उसके साथ बाकी के लिंक रहने चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्रांच के कॉम्बिनेशन में लिंक रहना चाहिए, ब्रांच के कॉम्बिनेशन में कभी भी दूसरा ब्रांच नहीं रहना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कैसे, देखो अभी मैं यहाँ पे कट करके दिखाऊंगा। ब्रांच के साथ में सिर्फ लिंक कट होगा, तो सपोज मैं ब्रांच नंबर 1 कट करना चाहता हूँ तो ब्रांच नंबर 1 में ऐसे कट करूंगा। देखो कौन कौन कट हुआ, 1 कट हुआ, 4 कट हुआ और 5 कट हुआ। 1 के साथ में 2 या 3 कट हुआ क्या, प्लीज चेक करो। 1 के साथ में 2 या 3 कट हुआ क्या? 1 के साथ में अगर 2 या 3 कट किया तो तुम्हारा कट सेट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 कौन है, 2 और 3 ब्रांचेस है और ब्रांच के साथ कभी भी दूसरा ब्रांच कट नहीं होता है। ब्रांच के साथ हमें कट करना है लिंक। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखो, अगर मुझे ब्रांच नंबर 2 कट करना है तो मैं ब्रांच नंबर 2 को कैसे कट करूंगा, ऐसे, ताकि ब्रांच नंबर 2 कट हो, 4 कट हो और 5 कट, है ना। ब्रांच नंबर 2 के साथ में मैं 1 नहीं कट कर सकता, इसको मैं ऐसे भी कट कर सकता था, है ना। कैसे, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, देखो ग्रीन कलर से मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ कैसे कट हो सकता था 2। ऐसे भी कट हो सकता था 2, राइट। बट मैंने ऐसे क्यों नहीं कट किया 2 को, क्योंकि अगर मैंने ये ग्रीन कलर से कट किया होता 2 को तो 2 के साथ में कौन कट हुआ होता, 2 के साथ में 1 कट हुआ होता और 2 के साथ में अगर 1 कट हुआ तो 1 तो ब्रांच है ना। तो ब्रांच के साथ कभी भी ब्रांच नहीं कट होना चाहिए,
ब्रांच के साथ हमेशा कौन कट होना चाहिए, ब्रांच के साथ हमेशा कट होने चाहिए लीव्स। इज इट क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कट सेट इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिक कट सेट इंसिडेंस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ध्यान में आया सभी को? सो लास्ट हमारा बच गया है 3, तो हम 3 को कुछ इस तरीके से कट करेंगे कि 3 कट होगा, 4 कट होगा और 5 कट होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देन आई विल राइट द एंट्रीज ओवर हियर। सो 1 के साथ में कौन कौन कट हुआ? 1 के साथ में कट हुआ 4 और 5। ठीक है, 2 के साथ में कौन कट हुआ? अगेन 4 एंड 5। और 3 के साथ में कौन कट हुआ? अगेन 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे बताऊंगा अभी। जब हम 1 को कट कर रहे हैं तो 1 का जो एंट्री है वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए। ये जो 1 है हमेशा कैसे चाहिए? 1 के लिए हमने a को कट किया, दैट मीन्स मैं यहाँ पे जब नाम दूंगा तो नाम देते समय मैं ऐसे नाम दूंगा। देखो नाम कैसे दूंगा मैं? इस तरीके से। मतलब ये जो a है इसका डायरेक्शन और 1 का डायरेक्शन सेम रहेगा। इसका डायरेक्शन और 1 का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो C का डायरेक्शन और 3 का डायरेक्शन कैसा चाहिए? सेम चाहिए। इसलिए जब यहाँ पर एंट्री करोगे तो एंट्री करते समय A के लिए 1 पॉजिटिव चाहिए, B के लिए 2 पॉजिटिव चाहिए और C के लिए 3 पॉजिटिव चाहिए। ये 3 एलिमेंट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, जिसके लिए तुमने कट सेट का नाम दिया है, जैसे 1 के लिए A नाम दिया है, 2 के लिए B नाम दिया है, 3 के लिए C नाम दिया है, तो ये 1, 2 और 3 ये कभी भी निगेटिव नहीं रह सकते, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर देखो डायरेक्शन इनको A, B और C दिया और इनका डायरेक्शन और इनका डायरेक्शन देखो दोनों मैच हो रहा है। हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है? बताओ, इनके दोनों के डायरेक्शन में हमने ऑपोजिट दिए क्या? अगर हमने इनके डायरेक्शन ऑपोजिट दिए तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो पूरा गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बेसिक कट सेट आउट ऑफ द 7 मैट्रिक्स, बेसिक कट सेट इज द ओनली डिफिकल्ट मैट्रिक्स जो बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है समझने के लिए। बट वंस यू सॉल्व 3 to 4 प्रॉब्लम्स, 5-6 प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करने लगोगे तो ये मैट्रिक्स भी आप लोगों को इजी जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको ध्यान में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको ध्यान में आ रहा है? 1, 2, 3 को हमने पॉजिटिव किया, अब 4 और 5 का क्या करना है वो हमने देखना है अभी, है ना? क्योंकि 4 और 5 सब में एंट्री आ रहा है तो 4 और 5 के भी जो रोज है वो भरने हैं हमें, है ना? मतलब 1 के कॉलम A के कॉलम में जाके 4 और 5 के सामने हमें प्लस या -1 फिल करना है, B के कॉलम में जाके 4 और 5 के सामने हमें प्लस या माइनस जो भी है वो करना है। देन C के कॉलम में जाके अगेन 4 और 5 के सामने +1 या -1 जो भी होगा एज पर द टेक्निकलिटीज वो हमें देख के वो फिल करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो अब आते हैं हम 4 और 5 पे। तो सबसे पहले हम लेंगे A का सेट। तो A के सेट में है हमारा 1, 4 और 5। तो अब हम 1, 4 और 5 में कुछ तो भी कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1, 4 और 5 में क्या कॉमन हो सकता है? लेट अस फाइंड दैट। ठीक है, और उसके हिसाब से हम चीजों को प्लस या माइनस करना है वो देखें। ठीक है, सो अब देखो 1, 4 और 5 में अगर हम कॉमन कोई चीज निकालना चाहे तो हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है जो कॉमन बन सकता है। तो जब ऐसी चीजें हो, जब हमें कॉमन क्या है नहीं मिल रहा है, तो हम ये आइदर ये 1 जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां खत्म हुआ है दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को हमने कंसिडर कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि ये 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 से, और कहाँ पे खत्म हुआ है? 1 पे। तो या तो 0 या तो 1, ये दोनों में से एक पॉइंट को हम रेफरेंस ले लेंगे और उसके हिसाब से +1 या -1 लेना है वो चेक करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो 1, 4 और 5 ये तीनों में कुछ तो भी हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, बट हमें दिख रहा है कि ये 1, 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना? तो 1, 4 और 5 में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने ये 1 जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे खत्म हुआ है, मतलब स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड, ये दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को हमने कॉमन ले लेना है और उसके हिसाब से +1 या -1 होगा वो हमने सेट करना है। ठीक है, तो सपोज हम कॉमन पॉइंट लेते हैं ये नोड नंबर 1 को।
तो नोड नंबर 1 में देखो ये एलिमेंट नंबर 1 क्या है, इनकमिंग है, और ये तो हमने ऑलरेडी पॉजिटिव ले लिया। दैट मीन्स अब हमने क्या करना है, इनकमिंग पॉजिटिव आउटगोइंग नेगेटिव, ये थंब रूल को अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस वन जो इसको इनकमिंग है ये ऑलरेडी हमने पॉजिटिव कर दिया, तो इस 1 के लिए ये 1 क्या हुआ, नोड नंबर 1 के लिए एलिमेंट नंबर 1 इनकमिंग हुआ, है ना। तो नोड नंबर 1 के लिए एलिमेंट नंबर 1 इनकमिंग हुआ, इसीलिए अब हम थंब रूल अप्लाई करेंगे, इनकमिंग पॉजिटिव आउटगोइंग नेगेटिव। तो देखो 4 और 5 इस नोड से आउटगोइंग होंगे कि इनकमिंग होंगे? प्लीज रिप्लाई करो जल्दी से। 4 और 5 जो है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 और 5 कैसा है? 4 और 5 का डायरेक्शन अगर इस तरीके से है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 और 5 का डायरेक्शन, तो ये 4 और 5 के डायरेक्शन के साथ में आप क्या कंक्लूड करोगे कि ये 4 और 5 इस 1 से आउटगोइंग हुए होंगे या 1 को इनकमिंग हुए होंगे? वेरी गुड, सो इट्स वेरी क्लियर कि ये 4 और 5 इस 1 से आउटगोइंग हुए होंगे, तभी इनका जो डायरेक्शन है इस तरीके से है। तो अगर हमने इनकमिंग को पॉजिटिव लिया है, तो अब बताओ 4 और 5 को हमने क्या लेना चाहिए? 4 और 5 को हमने पॉजिटिव लेना चाहिए या निगेटिव लेना चाहिए? जल्दी से रिप्लाई करो। 4 और 5 को हमने क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए या निगेटिव लेना चाहिए? आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है आई होप। वेरी गुड, सो 4 और 5 इस ए के कॉलम में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे और इस ए के कॉलम में आके 4 और 5 के सामने क्या लिखेंगे, -1। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको कॉन्सेप्ट में आया? दिस विल चेंज एवरी टाइम, है ना, हर बार ये चेंज होगा। कैसे दिखते हैं? 2 पे आने के बाद। तो जाते हैं 2 पे, देखो 2 के लिए हमने क्या दिया है, बी, और बी के लिए कट सेट क्या है, 2, 4 और 5। बी के लिए कट सेट अगर 2, 4 और 5 है, तो देखो 2, 4 और 5 में कुछ कॉमन निकल पाता है क्या? देखो 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 सारे के सारे इस नोड पे आ रहे हैं, तो हम इस नोड को कॉमन पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, आ रहा है ध्यान में सभी को? 1 के लिए हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला था, इसलिए हमने दोनों में से एक को कॉमन इनकमिंग हो गया, और इस 2 को तो हमने ऑलरेडी पॉजिटिव लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है? तो अब बताओ 2 अगर इसको इनकमिंग हुआ, दैट मीन्स 3 में जितने भी इनकमिंग है सारे पॉजिटिव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताओ। हम इस 2 के हिसाब से सारी चीजें चला रहे हैं, है ना, बाकी के हिसाब से नहीं चला रहे चीजें। तो इस 2 के लिए ये 3 पॉइंट जो है नोट, ये क्या है, ये 2 यहाँ पे इनकमिंग है, तो इनकमिंग पॉजिटिव हुआ। तो अब बताओ ये 4 और 5 भी तो इनकमिंग है, तो 4 और 5 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे? जल्दी से रिप्लाई करो। वेरी गुड, सो 4 और 5 भी क्या होंगे, होंगे इस बी के लिए, है ना। मतलब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। समझ में आया सबको ये पॉजिटिव क्यों हुआ? तो हर बार ये कॉमन पॉइंट जो हम चूज करेंगे, ये कॉमन पॉइंट के हिसाब से प्लस और माइनस क्या लेना है ये डिसाइड होगा, और हर बार ये चीजें जो है चेंज होते जाएगी, है ना, हर बार ये चीजें हमेशा चेंज होते जाएगी। ये तीनों के लिए कॉमन पॉइंट कौन दिख रहा है? नोड नंबर 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर डायग्राम छोटा दिख रहा होगा तो जूम कर लो, सबके मोबाइल में जूम हो जाएगा, नॉट एन इश्यू। ठीक है, ओके, सो ये तीनों के लिए हमें ये पॉइंट नंबर 2 जो है कॉमन दिख रहा है। अब ये पॉइंट नंबर 2 में हमने रेफरेंस किसको लिया हुआ है, ये 3 को लिया हुआ है। पॉइंट नंबर नोड नंबर 2 के लिए ये एलिमेंट नंबर 3 कैसा है, इनकमिंग है, जिसको हमने ऑलरेडी पॉजिटिव बना रखा है, हम उसको निगेटिव कर ही नहीं सकते, है ना, एज पर अवर रूल। ये 3 इस C के लिए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ये 3 जो है इस 2 को इनकमिंग है, दैट मीन्स 2 को सारे इनकमिंग और 2 को सारे आउटगोइंग नेगेटिव, है ना, 2 को सारे इनकमिंग पॉजिटिव और 2 को सारे सॉरी 2 को सारे इनकमिंग पॉजिटिव और 2 को सारे आउटगोइंग नेगेटिव। दैट मीन्स 3 को ऑलरेडी हमने पॉजिटिव बना रखा है, तो ये 4 और 5 क्या होंगे, 4 और 5 क्या होंगे, जल्दी से बताओ। 4 और 5 को हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है? फटाफट से बताओ। वेरी गुड, सो 4 और 5 को हमने क्या लेना है, 4 और 5 को हमने बनाना है निगेटिव। व्हाई निगेटिव? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन द डायरेक्शन एज पर 3 एंड द डायरेक्शन ऑफ 3 इज पॉजिटिव।
and direction of 4 and 5 is outgoing. That's why 4 and 5 will be negative. Alright, so is it clear everyone? I hope सबको ये समझ में आया। अब जो बच गए हैं वो सारे के सारे जगह पे हमने क्या करना है, उस सारे के सारे जगह पे हमने 0 पुट कर देना है। तो ऐसे करके जो है हमारा पॉइंट नंबर 4 का सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 का आंसर है। समझ में आया सभी को पॉइंट नंबर 4 का आंसर? इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको ध्यान में आया पॉइंट नंबर 4 का आंसर? कर लेंगे क्योंकि वो इसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज ऑगमेंटेड कट सेट और टाई कट सेट। फटाफट से हम ये मैट्रिक्स भर देंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स भरना बहुत इजी होगा। ऑगमेंटेड कट सेट, एक बार बेसिक कट सेट आ गया तो ऑगमेंटेड कट सेट मिलाना कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये मैट्रिक्स हम फटाफट लिख लेंगे। इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं बी डॉट से और ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स। इसके पहले वाला था नंबर ऑफ ब्रांच, अब ये होगा नंबर ऑफ लिंक्स। अब इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं? इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ लिंक्स है 2, तो इसीलिए ऑगमेंटेड कट सेट भी कितने बनेंगे? 2। अब इसको नाम क्या देना है? इसको नाम देना है इसके पहले वाले नाम के आगे के नाम। इसके पहले वाले नाम हमारे क्या क्या थे? ए, बी और सी। तो ए, बी और सी के आगे हमने 2 नाम दे देने हैं। हमारा लिंक 4 के लिए हमने नाम दे देना है डी और लिंक 5 के लिए हमने नाम दे देना है ई। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और इसके पहले वाला जो मैट्रिक्स है वहां से सारी की सारी चीजें कॉपी कर लेनी है पहले और बाद में डी और ई का जो कॉलम है वो फिल करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके पहले वाले मैट्रिक्स से चीजें कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम आगे की चीजें फिल करेंगे, ठीक है। सो फटाफट से लिख लो सब। ये डी और ई इसके आगे के नाम है, तो हमने डी और ई भी लिख दिए इस तरीके से। डी और ई भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम सबसे पहले इसके पहले वाले मैट्रिक्स से कॉपी करेंगे बी तक का पार्ट, ए बी सी जो हमने फिल किया था वहां तक का पार्ट। उसके बाद हम डी और ई के कॉलम का क्या करना है वो देखें। तो इसके पहले वाले मैट्रिक्स में हमने देखो क्या किया हुआ है। इसके पहले वाले मैट्रिक्स में 1 2 3 पॉजिटिव था, पहले वाले कॉलम नेगेटिव, बीच वाला कॉलम पॉजिटिव, फिर लास्ट वाला कॉलम नेगेटिव। तो ये हम फटाफट से भर देंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो हम ये 1 और ये 1 ऐसे कर देंगे। उसके बाद यहाँ का नेगेटिव, यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव, राइट। ये हमारे प्रीवियस मैट्रिक्स का पार्ट है। यहाँ तक हमारा प्रीवियस मैट्रिक्स था। अब इस मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ इस 4 के लिए क्या लिया है? डी। तो सीधा सीधा 4 पे आना है, डी में आना है और उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। 5 के लिए हमने क्या किया? ई। तो 5 में आना है और ई में जाना है और उसको करना है +1। बाकी के सारे एलिमेंट्स को हमने कर देने हैं। सो इट्स दैट सिंपल। इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स बन जाएगा इसका आंसर। ओके